Hello friends, my name is Alam and welcome back my YouTube channel English King 470. So friend, today I'm so excited because today I have a story about my friends. I got a call in the morning today. That was my friend. My friend told me, Alam, I am a English learner, but I am not able to speak English. So how will possible speak English for me? So I told him, are you really interested in English, speak English? He told me, yes, I am interested speak English, in speak English. So I give him a suggest and I told him, don't worry. If you speak English fluently, then you have a one condition. So he told me, what's what you want? Talk to me. Then I told him, bro, if you are a learner and if you are learning English, then you don't take tensions. Why? So I told him, if you interested, if you interest speak English, then you speak in yourself and you ask to yourself, can I speak English fluently? Then a voice will come from within you and the voice will be, yes, I am with you, but you can you don't able to speak in English. So friend, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो वीडियो ये है कि मेरा जो फ्रेंड था उसने मुझे कॉल करके बोला कि भाई मैं एक इंग्लिश लर्नर हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ बट मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ. ही टोल्ड मी आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक इंग्लिश. मैं समझ सकता हूँ इंग्लिश बट मैं बोल नहीं सकता इंग्लिश. सो मैंने उसे एक सजेशन दिया. आई गैव अ सजेशन टू हिम. मैंने उसे एक सजेशन दिया. मैंने क्या सजेशन दिया कि इफ यू इंटरेस्ट इन स्पीक इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश में इंटरेस्ट हो सीखने में, तो आप अपने से एक सवाल करो. क्या सवाल करो? आस्क इन योर सेल्फ. तुम अपने में एक सवाल करो कि कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ फ्लुएंटली. सो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगा. क्या आवाज आएगा? अ वॉइस विल कम फ्रॉम विथ इन यू. मतलब तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगा कि यस आई एम कमिंग, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, बट यू कैन नॉट, यू आर डोंट, सॉरी, यू आर नॉट ट्राई टू फाइंड मी. तुम मुझे पाने की कोशिश नहीं करते हो. हर इंसान के अंदर में एक खूबी होती है. खूबी क्या? क्वालिटी. एक क्वालिटी होती है जिसमें वो अपने आप में एक अंदर अंदर में हर एक इंसान का एक एक खूबी होता है जो अंदर आने की ट्राई करते हैं बट हम उसे अंदर आने नहीं देते हो. सो इसमें हमें क्या करना चाहिए? इफ आई वांट, I am an English learner. I will give you example for English type. So I am a
इंग्लिश लर्नर, मैं एक इंग्लिश लर्नर हूँ, तो मैं एक इंग्लिश लर्नर की तरफ ही जवाब दूंगा, जो कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप इंग्लिश याद कर रहे हैं। जैसे इफ यू रिमेंबर सम सम बार एंड वोकाबुलरी एंड मॉडल्स कंजक्शन प्रीपोजिशन, जो भी हो, एनीथिंग, अगर आप उसे याद करना चाहते हो, याद हो भी जाता है, बट यू कैन नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम उसे समझ नहीं सकते, यू कैन नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम उसे समझ नहीं सकते, एंड व्हेन until will you not speak to other people, then you will not ability in your English and you will not find in your English, कभी तुम अपने इंग्लिश को नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें जो इंग्लिश आती है, तुम जानते हो कि मुझे इंग्लिश आती है। अगर आप इंग्लिश जानते हुए भी अगर आपको 100 वोकैबुलरी याद है और 100 वर्ब याद है, यू रिमेंबर 100 vocabulary and you remember 100 vocabulary, you remember models, you remember preposition, you remember in your mind totally everything, but you cannot speak English. That is why when I will do mistake, when do I will mistake, मेरा मिस्टेक कहाँ करते हैं या कहाँ करेंगे, when do I mistake, it is big fault for all learner, because if you learn English, if you fluently speak English, if you teach in English to all your family members and your partners and your student, we are not speak English fluently. If you will become a teacher, but you can't speak English, you can't understand English, you can't write English, so how will teach you to your student? अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, अगर आपको इंग्लिश बोलना ही नहीं आता, अगर आपको इंग्लिश लिखना ही नहीं आता, तो आप कैसे करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाओगे, अपने छात्र को पढ़ाने के लिए? if you not able to speak English to with you in yourself, then you will not completely discharge. Am I right? Are you getting my point? I am not teacher, I am a English learner, but before time मैं एक इंग्लिश लर्नर हूं और मैं अपने इंग्लिश को इतनी ही शिद्दत से चाहता हूं कि मैं एक इंग्लिश को अपने मुट्ठी में करना चाहता हूं कि मुझे इंग्लिश आना ही चाहिए। और मैं एक केक पेस्ट्री शेफ हूं, मैं केक बनाता हूं, बट मेरा माई ड्यूटी टाइम इज एवरी डे आफ्टरनून 12 o'clock till night 9 o'clock, but I have totally times minus 9 days, 24 hours in minus 9 hours। मेरे पास 24 घंटे में 9 घंटे अगर मैं छोड़ देता हूं, उसमें भी मेरा इतने सारे टाइम मेरे पास होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। 9 घंटा 24 घंटा में अगर माइनस हो गया तो आपके पास 15 घंटा बचता है। 15 घंटा में अगर आप 7-8 घंटा भी सो गए तो आपके पास फिर भी 7-8 घंटा बचता है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग, नॉट ओनली इन लर्न इंग्लिश, कुछ भी कर सकते हो। बट मेरे पास, मेरे बातों से आज का जो वीडियो है, आई एम सो एक्साइटेड इन माई सेल्फ, I am so excited. I conversation with all peoples in English because I have knowledge in English.
मेरे पास इंग्लिश का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं जब इंग्लिश सीख रहा था, आज से 1-2 दिन पहले का ही आप वीडियो देख लो, मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट के साथ मैं एक अपना हेजिटेशन को साइड करके मैं अपने स्पीक इंग्लिश को अपने और अपने बाहर निकाल सकता। नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती था, बट आई थॉट हाउ विल बी पॉसिबल फॉर मी, सो आई थॉट I will speak to other peoples, but how? So I downloaded on Play Store one apps. That app's name is CBF. So I will talk to other peoples in 30 minutes every day, and I talk every day 30 minutes in other peoples, and I have knowledge of English little bit, not 80% I have knowledge is in English, and I conversate in my partners. हम जहाँ से इंग्लिश सीखते हैं उसमें से बहुत से ऐसे फ्रेंड है जिसको इंग्लिश नहीं आती हो, बट हम सब एक ग्रुप बना इंग्लिश का और उसमें से हम इंग्लिश को ट्राई करते रहे एवरी डे। I tried speak English every day in my all partners, in my all to my all learners, और आज मुझे इंग्लिश का 80% नॉलेज जो कॉन्फिडेंस के रूप में होता है वो आज मेरे पास है। आज का वीडियो में अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश अभी भी हेजिटेशन फील कर रहा हूं तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज टुडे I am completely and confidently I make this video. बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें इंग्लिश बोल रहे हो बट यू नेवर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो आई आस्क्ड हिम why will not speak English, why I will why will I not speak English fluently? तो उसने कहा क्योंकि तुम हेजिटेशन हो, तुम संकोच करते हो, तुम डरते हो, यू आर फेयर, यू आर कवर्ड, तुम डरपोक हो, तुम नहीं सीख सकते। सो मैंने सोचा कि मुझे अगर इंग्लिश सीखना है तो मुझे किसी भी हाल में सीखना, और मैंने वो ऑप्शन आजमाया जो प्ले स्टोर में सीबी ऐप मिला, उसमें 30 डे एवरी डे आई टॉक टू एवरी पीपल्स ऑन इन इंग्लिश, और उससे मुझे कॉन्फिडेंट मिला। एंड आई अपलोडेड माई वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल एवरी डे। मैंने जो वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरा एक भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जो मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूँ। बहुत से मैं डरपोक जैसा बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे सीखूं, मैं क्या करूं, मैं सोचते रहता हूँ कि मेरे इंग्लिश इतनी, मुझे पता है इंग्लिश, but unless you cannot try to speak English, then you will not able to speak English. If you learn English, if you are a English learner, then you will manage in your times. If you will not manage your times, then you never learn English. You know, never ended learn speak English and others types work and anything. कभी भी एंडिंग नहीं होता है, सीखने का कोई भी समय नहीं होता है, जब आप चाहो तब आप सीख सकते हो, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा। So friend, comment me and give me compliment. How is my video today's? How I made this video? How is confident my English knowledge, in my English knowledge?
आज का वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसमें आपको पता चलता ही होगा कि मेरे इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हुआ है, और मैं अपने अंदर की जो जोश है वो मैं जाहिर नहीं कर सकता कि मुझे कितनी एक्साइटेड हो रहा है कि मुझे इंग्लिश में बात करना है। बिकॉज इफ यू नो इंग्लिश देन you are feeling better, you will feeling better how। आपके पास अगर इंग्लिश नॉलेज होगा ना दोस्त, तो आप एक रिच मैन की तरफ फील करो, क्योंकि आपको ना किसी भी कंट्री में जाने से डर लगेगा, ना किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने में डर लगेगा जिसको इंग्लिश आती है और आपको नहीं आती। मैं यहाँ पर अभी हूँ जहाँ काम कर रहा हूँ, इधर इंग्लिश की कोई भी नहीं जानता, हिंदी कोई नहीं जानते। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आई फेस्ड many problems that then I thought I will learn English। जब मैं यहाँ आया तो बहुत से ऐसे मेरे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि यहाँ हिंदी किसी को आती नहीं है, और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ हिंदी सीखने में, हिंदी से इन लोग के साथ बात करने में। तभी मैंने सोचा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे बच्चे से लेकर सिटीजनशिप, जिसको बोलते हैं सिटीजन, ओल्ड सिटीजन, तो बूढ़े तक, छोटे बच्चे से बड़े तक सबको इंग्लिश आती है। तो मैंने सोचा कि मुझे इंग्लिश सीखना है। और जब मैं वीडियो बना रहा था पहले, तो मैं बहुत शाय जैसा था। मेरे सामने अगर यहाँ पर कोई खड़ा है, इधर कोई खड़ा है, कोई बात कर रहा है, तो मुझे बहुत शाय फील होता था। बट टुडे आई एम कॉन्फिडेंटली स्पीक एंड आई कॉन्फिडेंटली मेक दिस वीडियो। जैसे मेरे सामने ये बहुत सारे ऐसे काम करने वाले लड़के हैं जो आज मुझे शाय फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है अभी। पहले नहीं आती थी, डर लगता था कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, क्या इन लोग सोचेगा, क्या बोलेगा, कहाँ मिस्टेक निकालेगा। तो उस टाइम मुझे शर्म आती थी मुझे अपने आप से। बट अभी मेरा इंग्लिश इतनी अच्छी होने लगी है कि आप मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि मेरा इंग्लिश 50% प्लस हो चुका है। जो मैं इंग्लिश पता है 50% प्लस हो चुका है, यानी मुझे इंग्लिश की नॉलेज आने लगी है, और मैं इंग्लिश बोलने लगा हूँ। अभी बहुत ऐसे सेंटेंस मिस्टेक होते हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत ऐसे मिस्टेक होते हैं, बट अभी मैं इंग्लिश अच्छे से ही, लगभग ऑलमोस्ट इंग्लिश में सही बोल रहा हूँ। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आज का वीडियो अच्छी बने हैं तो प्लीज़ एक लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देना कि आज का वीडियो कैसा है। और ऐसे ही वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा। और मेरा एक जो इंटेंशन है कि मैं इंग्लिश सीख के अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहता हूँ, जिसको इंग्लिश नहीं आता। क्योंकि आने वाले कल ऐसे होने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे, भाई के बच्चे, कोई भी ऐसे हो जो अभी आप, अगर मुस्लिम हो तो उर्दू लाइन में पहले नहीं देते हो, आप हिंदू हो तो आप ऐसे से अपने रेजिलियस टाइप के स्टडी करने पहले आप क्या करते हो, इंग्लिश मीडियम में डाल देते हो। तो कुछ दिन बाद ऐसे हो जाएंगे जो छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलेंगे और हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं होगा, जिसमें हमको बहुत गिल्टी फील होगा कि भाई ये छोटे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं बट हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो इसके लिए मेरा इंटेंशन यही है कि अगर मैं इंग्लिश सीखा तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने दोस्तों को भी इंग्लिश सिखाऊंगा। तो आप लोग से इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा मिस्टेक जो है उसको कमेंट में बताया। अगर अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, मुझे पता चले कि मेरे लाइक के अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि मेरा इंग्लिश अभी कैसा हो रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ना भूले, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने इंग्लिश लर्नर को भी, जो इंग्लिश सीख रहा है, उसे भी शेयर करो कि देखो ये इंग्लिश सीखते सीखते इसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ रहा है, और किस तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस आ सकते हो। एवरीथिंग who I was facing my problems, then I will give you suggestion every day how will improve our English. So thank you watching my video and have a nice day.